and assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. Thank you so much for joining us. We are live and we are very excited and thrilled क्योंकि ICC Women's Cricket World Cup इस वक्त जारी है. पाकिस्तान की journey in the World Cup has unfortunately not been that great. 3 losses in 3 games, but well the journey continues. और दूसरी तरफ एक्शन जो है वो जारी है. कुछ ही देर में जो है एक और एक्साइटिंग मैच आप देखेंगे बिटवीन साउथ अफ्रीका वेमेन एंड बांग्लादेश वेमेन. सो स्टे ट्यून्ड टू योर स्क्रीन्स फॉर दैट. लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, मेंस टीम जो है वो अपना रेड बॉल फोकस अभी कंटिन्यू कर रही है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कैंपेन शुरू हो चुका है फॉर पाकिस्तान एंड देयर प्लेइंग साउथ अफ्रीका इन अ 2 मैच टेस्ट सीरीज एट होम. उसके अलावा जी एक तरफ कोलंबो में हमारी विमेंस टीम भी बिजी है इन देयर वर्ल्ड कप और उनकी होप्स यही हैं कि अपने जो फॉर्चून्स हैं उनको टर्न करें अपने फेवर में थ्रू अ बेटर परफॉर्मेंस विद द बैट. इन सब के बारे में हम इन डेप्थ भी आज बात करेंगे इन द लेटर हाफ ऑफ द शो. बट बिफोर दैट अ क्विक लुक एट द क्रिकेटिंग न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. Australia beat Pakistan by 107 runs in the 9th match of the ICC Women's Cricket World Cup in Colombo. Australia scored 221 for 9 batting first after collapsing for 76 for 7 in the 22nd over, but Beth Mooney scored 109 to get Australia out of jail. Pakistan later scored only 114 in 36.3 overs, with Australia winning by 107 runs. This was Pakistan's 3rd loss in 3 games in the event. They will now take on England at the same venue on 15th October. Nashra Sandhu, who picked up 3 wickets against Australia, is now the highest wicket taker for Pakistan in Women's World Cup history with 20 wickets in 16 matches, overtaking Sana Mir. The Pakistan international star ripped through Islamabad's middle order playing for Lahore Whites. Wicketkeeper Rizwan Ali was bowled for 18. Faizan Riaz and Sarmad Bhatti faced 7 balls put together and failed to open their accounts. And captain Hassan Nawaz was caught for 14. Naseem Shah finished with figures of 5 for 34. Pakistan and South Africa start their World Test Championship campaigns. It's ICC World Test Championship 2025 to 2027 with the 2-match test series against South Africa. First match is on its way at Qaddafi Stadium, Lahore. The second test will be held in Rawalpindi from October 20th to 24th. The series also includes 3 T20Is and 3 ODIs, with the ODI leg marking the return of 50-over international cricket to Iqbal Stadium, Faisalabad. Shaheen Shah Afridi, Pakistan's star left-arm pacer, has been named in the test squad for the 2-match test series against South Africa, marking his return to the format after nearly 17 months. He is sharing the new ball with Hassan Ali. On October 8th, the Strikers defeated the Conquerors by 4 wickets to win the final in Karachi. The Conquerors scored 91 for 4 in 20 overs, with Strikers reaching the target with 4 wickets and over 3 overs to spare. Strikers captain Zulfishan Ayaz scored 30 runs and Narjis Bibi took 2 wickets. Conquerors captain Samia Afsar scored 32 runs and finished as the tournament's top run scorer. Aqsa Habib of the Strikers was named player of the tournament. Australian Test captain Pat Cummins is in a race against time to be fit for the first Ashes Test against England, which is set to begin in Perth in November. Australia coach Andrew McDonald acknowledged that time was running out but remained optimistic that Cummins will play some part in the series. Well, this was cricketing news for you from around the world. In case you missed it, यहाँ पर एक short break लेंगे. But when we return, all eyes will be on the World Test Championship and, of course, also on the Women's World Cup, where all the action is continuing. यहाँ पे break ले रहे हैं. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight.
Ji, thank you for joining us back. You're watching Sports Tonight, and all eyes right now are on the new cycle of the World Test Championship. Pakistan and South Africa have begun their latest campaigns. एक तरफ top of the table last season जो champions रहे और एक तरफ bottom of the table Pakistan. They will be hoping to turn things around this time around, and of course with an in-form top order आप कह सकते हैं कि शायद they might have a chance. It all depends on how they create difficulties for South Africa with the ball. यहाँ पे आज हमारे साथ दो बहुत special guests हैं. Of course, they're regulars. You've seen them, and we often talk cricket and football. And आज जो है, it's going to be focused primarily on red ball, and also of course later on in the show, Women's World Cup के ऊपर भी बात करेंगे. Sports analyst and expert Hassan Azam has joined us. Assalamu alaikum Hassan, great to have you back on Sports Tonight. Walaikum assalam. Pleasure to be here again and talking red ball cricket. Yes. Finally the home season started, so yeah. Finally, lots to talk about and lots to unpack. उनके साथ हमें join कर रहे हैं another regular, another PTV sports face. He's back in the studio with us. GM Islamabad United, Rehan ul Haq. Assalamu alaikum Rehan. Welcome back to the show. It's been a while. वालेकुम अस्सलाम. I'm so happy we don't have to talk about T20 cricket जहाँ पे ये कह सकते हैं इस्लामाबाद का कोई लिंक है. तो टेस्ट मैच क्रिकेट I'm very happy. I can comment on it without thinking oh लोग क्या समझेंगे, तो I'm very happy about it. But have you ever commented on anything with No, this no. thought? I don't think you have. Not कि लोग क्या कहेंगे? never in my entire life, but people still come up with different theories. चले Yeah. आज हम टेस्ट मैच से ही शुरू करते हैं. रेहान, let's start with the fact कि 378 is what Pakistan managed after the kind of start we got. इमाम उसी टच में हैं जो कि यॉर्कशायर के साथ वो खेल रहे थे. अच्छा सीजन उनका जा रहा था, and he seems to be continuing that in that first day में आपने जो देखे glimpses from इमाम उल हक. Good to see him getting runs. Absolutely, I think Imam's been in great form. जो दूसरी चीज़ मुझे इमाम की इनिंग्स की बहुत impressive लगी कि इमाम in previous times आप थोड़ा ये कह सकते हैं इमाम का pace of scoring जो है उसके ऊपर थोड़ा concern लोगों को रहता है कि वो even test matches के अंदर भी लेकिन when you are playing on pitches जो कि पाकिस्तान पिछले इंग्लैंड सीरीज onwards प्रोड्यूस कर रहा है Yeah. तो उन pitches के ऊपर you are bound to get out on a good delivery. तो इट्स बेटर टू स्कोर एट अ फास्टर रेट क्योंकि आप डिफेंड करते हुए भी आपको कोई अच्छी बॉल पड़ेगी आप आउट हो जाओगे. अब्दुल्ला शफीक बीइंग वन एग्जांपल इन दैट केस. तो इमाम ने जिस तरह पेस की अपनी इनिंग्स, आई थिंक वो सबसे एक खुशाइन बात है इमाम की इनिंग्स की. दूसरा फॉर्म, ही इज कैरिड फॉरवर्ड दैट फॉर्म, और कॉन्फिडेंस जो फॉर्म से आता है ना, लाइक पीपल टॉक अबाउट फॉर्म बट हाउ डू यू डिफाइन फॉर्म? क्या आपका मतलब हेड पोजीशन राइट है, टेक्निक राइट है? टेक्निक तो उसकी हमेशा से यही रही है, माइनर ट्वीक्स उसने ऊपर नीचे किए हैं. कॉन्फिडेंस ये है जब व्हेन यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्कोरिंग रन्स टू ट्रांसलेट दैट, आई थिंक वो फॉर्म होती है. और इस वक्त इमाम हैज़ फुली यूटिलाइज्ड ऑन दैट फॉर्म, एंड क्रेडिट टू द टीम मैनेजमेंट इज वेल कि इमाम इससे पहले आपको याद है साइम ओपन कर रहे थे, साइम इज अ लिटिल आउट ऑफ फॉर्म, एंड ह्यूज क्रेडिट टू देम फॉर कीपिंग साइम इन द स्क्वाड एज वेल, बिकॉज आपको फॉर्मेट्स मिक्स नहीं करने चाहिए. तो इमाम के लिए आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर इमाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. एंड एनीवन स्कोरिंग अबव 40-50 रन्स इन दीज कंडीशन जो कि अब हम पिचेस बना रहे हैं, तो वो इज बेटर देन स्कोरिंग लेट्स से 80 ऑन completely flat tracks that we produced in the Australia series, और after that in that 600 वाला टेस्ट मैच इंग्लैंड में जहाँ पे एक दिन में 600 स्कोर हो रहा था. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अब हमें जो लोगों का स्कोर है वो पिच के मुताबिक देखना है, क्योंकि वी वांट रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस इवन अगर आप हारो, क्योंकि फाइनल में अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहुंचना है तो यू नीड टू विन गेम्स, यू कैन नॉट ड्रॉ गेम्स एंड रीच द वर्ल्ड टेस्ट especially चैंपियनशिप. you know home games are so important. Last season भी हमने काफी लेट जाके realize किया था that there might be a formula, there might just be a way Pakistan can sort of create pitches and create conditions to our strengths, और वो फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमने देखा. बट अभी इमाम गेटिंग रन्स, गुड साइन. हमने विकेट को भी चेंज होते हुए देखा, लेकिन अगेन शान वाज ऑन द अदर एंड. एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई with captain Shan Masood also getting runs coming in at 3. How much of a confidence booster will that be? क्योंकि as a captain ये तो म्यूजिक चलता ही रहता है जब आपका फॉर्म खराब जा रहा हो कि अगली सीरीज होगी नहीं होगी, आप कैप्टन होंगे नहीं होंगे. लेकिन शान was given that confidence by the management, and now he seems to be comfortable with the bat now. I mean with the leadership role you always grow into it. There no born leaders. आप ख़ास तौर पे उस एनवायरनमेंट में आप सीख के आगे बढ़ के चलते हो. ख़ास तौर पे जिस तरह हमने अपना पहला टेस्ट चैंपियनशिप देखा था उसमें अजहर अली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान 3 कप्तान थे. आपके पिछले टेस्ट चैंपियनशिप में 2 थे. अब तो लग रहा है कि शान को पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि एक पूरा टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल मिले. और
और जब आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है वो फिर आपकी परफॉर्मेंस में भी ट्रांसलेट होता है. सो दैट वाज गुड टू सी द वे ही केम आउट टू बैट एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल ही लुक टू स्कोर रन्स. और शान का ये जो रन स्कोरिंग वाला या एग्रेसिव क्रिकेट वाला जो फार्मूला है, वी बीन टॉकिंग अबाउट Yeah. बेसबॉल एंड ऑल दैट, जब से वो कप्तानी में आए हैं उनकी ऐसी ही अपनी रही है अप्रोच. एंड इट वाज गुड टू सी दैट कमिंग ऑफ. स्पेशली आई थिंक पाकिस्तान की खासियत जो ये उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स का टोटल बनाया उसमें जिस तरह उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया स्पिनर्स के खिलाफ, दैट वाज रियली गुड टू सी. बिकॉज जब आप बार बार कदम निकाल के उनकी लेंथ को छेड़ रहे थे, there's always going to be delivery with your name on it, so staying aggressive. He used sweep shots and the reverse sweep shots, always trying to mess with the rhythm of the ballers. And another good thing I thought between that partnership and the partnership between Agha and Rizwan was the constant strike rotation, क्योंकि हमारी chunks में wicket गिरी हैं, तो जब partnership लगी है उन्होंने उसको capitalize किया है. And you could have put your hats on कि आप कोई ना कोई बंदा इसमें से 100 करता, unfortunately वो नहीं कर पाए. But definitely शान ने भी जिस तरह अप्रोच किया, स्कोर किया, और खासतौर पे सेकेंडली शान का इस सीजन, इस साल में 2025 में इज एवरेजिंग 40 प्लस. सो ज़ अ रियली गुड साइन. आई थिंक एज अ कैप्टन यू ऑलवेज गेट मोर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर स्कोरिंग योरसेल्फ एज वेल एंड देन यू लीड योर साइड. भाई हमारे जूनियर कैप्टन भी बहुत ज़बरदस्त, वी नो ही इज़ नोन टू प्ले सच ग्रेट नॉक्स अगेंस्ट स्पिनर्स, बट आगा की नॉक के ऊपर रेहान यू मस्ट बी प्लीज्ड, यू वर्कड क्लोजली विद हिम, हिज evolution as a player, not just as a batter but also as a leader. How happy are you to see Agha getting runs? Very happy. I think पाकिस्तान की जो पिछली टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके अंदर there's not much जिस पे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान ने अच्छा किया हो, लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, नंबर 5, 6, 7 पाकिस्तान was up there with the best in the world, and वो थे सऊद, रिजवान एंड आगा. इट्स ग्रेट टू सी के रिजवान एंड आगा ने वो फॉर्म कंटिन्यू रखी. ऑब्वियसली सऊद इतनी देर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, उसके अंदर नहीं थे T20 स्क्वाड के अंदर, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन ये 3 जो प्लेयर्स हैं ना, ये आपकी बैकबोन है इस वक्त आपकी टेस्ट टीम के अंदर. बिकॉज पिछले टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जब ऊपर से 4 आउट हो जाते थे, आपको 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 जो आपको सेव करते थे वो ये 3 थे. तो अब वो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करना, और यही चीज़ बार बार रिपीट करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए. एंड आई फील के as people who look at the sport and sometimes create narratives around the sport, it's our job as well to differentiate between formats. कि अगर आगा ने T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि आगा बुरा टेस्ट बैट्समैन बन गया. टेस्ट बैटर भी है, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं कि अगर आगा ने कोई एक प्लेयर है उसने T20 में ट्रेमेंडसली परफॉर्म किया तो वो टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर होगा. डिफरेंट फॉर्मेट्स रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स. तो आई मीन वो फॉर मी आगा कमिंग इनटू टेस्ट क्रिकेट इज ऑलमोस्ट लाइक आगा कमिंग होम. And will that in some way also help his form in other formats? If he's playing such extended knocks test cricket में, तो obviously आप छोटे formats में भी that form will translate, right? Absolutely. I think खास तौर पे शायद उनके ऊपर जो ज़्यादा स्क्रूटनी थी एशिया कप में वो ये भी थी कि मिडिल ऑर्डर में सबसे अच्छी स्पिन खेलने वाले वही बैटर थे. और जब भी वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं और जिस नंबर पे खेलते हैं, खास तौर पे 7वें नंबर पे खेलना, और फिर वी कंसिस्टेंटली सी हिम प्लेइंग विद द लोअर ऑर्डर, तो उन्हें ही वो अपने कंधों पे लेनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. इस मैच में भी वो छक्का मारते हुए अपनी सेंचुरी के करीब आउट हुए, आखिरी विकेट उनकी गिरी. तो ये जब आप यू नो एज अ बैटर कि व्हाट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर, सो गेटिंग दीज रन्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही न्यू ही वाज गुड अगेंस्ट स्पिन. एक सीरीज अच्छी नहीं गुजरी, बट यू ऑलवेज कैरी दैट कॉन्फिडेंस इनटू एनी फॉर्मेट. But I absolutely agree with Rehan here कि आप क्रॉस फॉर्मेट फॉर्म को नहीं डिस्कस कर सकते या उसकी बेस पे आप डिसीजंस भी नहीं ले सकते. आई थिंक दैट्स शॉर्ट साइटेडनेस. बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका आल्सो केम प्रिपेयर्ड बिकॉज दे न्यू बिफोरहैंड, इवन एडन बार्टम सेड कि वी नो द काइंड ऑफ कंडीशंस वी आर गोना गेट, और उन्होंने तैयारी पूरी अपनी की है. 6 विकेट्स लिए जी सनूरन मुतसमी ने अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड स्पेशली द लास्ट जब एक क्विक 3 विकेट्स हमने लूज किए फॉर 0 रन्स. लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग को अब एक ब्रेक लग गई है, और वहाँ से वी आर नॉट फाइंडिंग आवर वे थ्रू दैट. व्हाट हैपेंड एकदम से दैट ग्रिप दैट वाज क्रिएटेड, बिकॉज वी नो देयर वाज सो मच bounce, there was spin, there was a lot of the ball was just moving around so much for the batters to do anything. I think number 1 तो ऐसी पिचेस के ऊपर आपको ऐसे पैचेस मिलेंगे जहाँ पर यू नो एकदम से आपकी विकेट्स गिरना शुरू होंगी. दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आई वाज गोइंग थ्रू सम बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीकी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, इनके वो देख रहा था रिकॉर्ड्स. They are actually far better when they attack spinners, because basically if you can charge down the track and stop the ball, और उसी बॉल को अगर आप लिफ्ट करके चौका मार सकते हो, और बाबर
जितनी बाबर में एबिलिटी है, मतलब अभी भी बाबर T20 में है नहीं है, एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी ही इज अप देयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड इवन नाउ, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी इंटरनेशनल फॉर्म 100 उन्होंने काफ़ी देर से नहीं की, लेकिन ही हैज़ दैट एबिलिटी. समटाइम्स आई फील के वो थोड़ा टाइम लगेगा बाबर को वो स्विच लगाने में, लेकिन व्हेन ही डज अटैक स्पिनर्स ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर. अब्दुल्ला इज सिमिलर. मुझे याद है अब्दुल्ला प्रभात जसूरिया से कोई 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा आउट हुए थे एंड ही वाज डिफेंडिंग हिम. And in the next game, when he scored a double hundred, he came down the track, hit him for a 6, hit a sweep. Immediately, प्रभात जसूरिया की लेंथ उसने ख़राब कर दी. तो अब इन पिचेस के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज आप यू कैन नॉट बी बैटिंग 200 ओवर्स ऑन दीज पिचेस एनी लॉन्गर. अब आप आउट होगे, बहुत अच्छे दिन के ऊपर भी आप 120-130 ओवर्स आप खेलोगे और आप आउट हो जाओगे. तो उन 120-130 ओवर्स में यू नीड टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. तो आई थिंक वो पैचेस आएंगे. साउथ अफ्रीका से जो मुझे एक है वो कि इवन पाकिस्तान का जो गोल्डन पीरियड था, होम पीरियड, मिसबा की कप्तानी के अंदर जब यूएई में पाकिस्तान खेलता, तो साउथ अफ्रीका वो वाही टीम थी जिन्होंने उधर आकर पाकिस्तान को बेसिकली स्लो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर टक्कर दी और सीरीज ड्रॉ करके गए थे. तो इवन नाउ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस किसी वजह से हैं. तो आई मीन ये हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी ऑन डे 3 कि हाउ साउथ अफ्रीका बैटेड ऑन दिस पिच, हाउ वी बोल्ड ऑन दिस पिच. बट अभी तक अगर ये बिल्कुल उतनी सिमिलर पिचेस हैं जितनी आपने पिछली 2 सीरीज में देखी हैं, तो 300 से ऊपर स्कोर शुड बी अ रियली गुड टोटल ऑन दीस पिचेस. But you think 378 is something for the bowlers to bowl at, or if yes, क्या strategy होनी चाहिए? How should Shan Masood deploy his resources now that we know कि conditions क्या हैं and we have the strength to back our runs? आई थिंक इसमें एक चीज़ है कि आपने 2 फास्ट बॉलर्स मेनली यूज़ किए हैं. द रीज़न इज़ के always having one bowler who can bowl at pace is always going to be tricky as your bowling attack. तो क्योंकि आप सलमान अली आगा से गए who's going to be your bowling all rounder, तो आपने 2 पेस बॉलर्स यूज़ किए कि बॉल रिवर्स भी हो सके क्योंकि कंडीशंस इतनी ड्राई हैं. लेकिन बल्क ऑफ द बॉलिंग हम नुमान और साजिद खान से कराए. ऐसा ही होगा. उन्होंने भी शुरू में अपने पहले दिन की विकेट, पहला सेशन 2 ओवर या 1 ओवर मोल्डर करते हैं और वो साथ ही अपने स्पिनर ले, उनको समझ आ गई एंड दे वर बीटिंग द बैट कंसिस्टेंटली. बिल्कुल ऐसा ही देखेंगे आप पाकिस्तान की तरफ भी. टाइम नहीं वेस्ट करना, बस राइट डाउन टू बिजनेस. आप देखें नुमान की 4 मैचेस में 36 विकेट्स हैं पिछले, और साजिद की 5 मैचेस में 37 विकेट्स हैं. तो द ब्लूप्रिंट इज राइट देयर. यू जस्ट गॉट टू गो फॉर इट. चांसेस भी थे, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई थी. ये है कि स्पिनर्स विल हैव द बल्क ऑफ द वर्क to do, और नोमान और साजिद will have to. I think ये एक sort of एक continuation ही है from that last season जब हम देख रहे हैं, जो हमारा home season था. And what can Shaheen add to this? And of course Hassan and Shaheen with the new ball, क्या different वो add कर सकते हैं? And especially through the middle phase as well. हसन अली के ऊपर भी काफ़ी responsibility है, being one of the seniors now. I think ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा how शाहीन एंड हसन आर यूज्ड. तो पाकिस्तान जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को विजिट किया था, तो हसन एंड शाहीन कम्प्लीटली ब्लू साउथ अफ्रीका अवे विद देयर रिवर्स स्विंग बॉलिंग. और रिवर्स स्विंग के ऊपर हसन इज़ अ वेरी रिलायबल रिवर्स स्विंग बॉलर. शाहीन विद अ न्यू बॉल इज़ वेरी रिलायबल. तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. शाहीन को आप एक एंड से नई बॉल से यूज़ कर सकते हैं, दूसरे एंड से आपसे बेशक स्पिनर लगा दें. एंड देन व्हेन द बॉल इज़ अ लिटिल ओल्डर, उसके ऊपर वी नीड टू वर्क ऑन द बॉल एज वेल. तो उसके ऊपर हसन अली बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट देन कि हसन अली कैसे उन कंडीशंस का इस्तेमाल करता है. तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस. खुरम, आई फील खुरम शुड बी इन द मिक्स ऑल द टाइम, बिकॉज उनका जो टेस्ट का बॉलिंग रिकॉर्ड है over the last 2 years in very difficult conditions as well, he was really up there. So might feel hard done by not being in the 11, but still आपके पास अब left arm option आ गया है with Shaheen. And मुझे याद है पाकिस्तान won 2-0 in Sri Lanka in conditions where the ball was spinning. But Shaheen ने 1-2 विकेट्स पिक की थी. नसीम was the other bowler there जहाँ पे रिवर्स के ऊपर और बाउंसर्स के ऊपर विकेट्स आपने ली थी. तो पेसर्स का रोल अब वो होगा जो कि नॉर्मली स्पिनर्स का रोल होता है व्हेन यू ट्रैवल अवे फ्रॉम होम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जगह में, कि वो जो स्टॉप गैप आ रहा है जिसके अंदर आपने रन्स कंट्रोल करने हैं, या यू गो फॉर एन एक्स फैक्टर, तो आप वहाँ पे करें. एक और चीज़ आई होप पाकिस्तान ट्राइज है साउथ शकील. साउथ को एक मैच के अंदर 5 चौके पड़ गए थे. उन्होंने अपना टेस्ट में आई थिंक पहला या दूसरा ओवर करवाया था इंग्लैंड के खिलाफ. उस पिच के ऊपर तो किसी को भी 5 चौके पड़ सकते थे. वो बैस बॉल खेले थे, पिंडी की आई मीन इतनी फ्लैट पिच शायद ही किसी ने टेस्ट क्रिकेट में देखी हो. लेकिन साउथ ऑन दीज पिचेस बिकॉज ही बोल्स स्टंप टू स्टंप एंड इज वेरी डिफरेंट, कैन बी योर एक्स फैक्टर. कहीं पार्टनरशिप लगी, यू कैन यूज हिम एज वेल. तो पाकिस्तान का टेक्निकली
4 स्पिन ऑप्शंस हैं इस वक्त Yeah. जिनको आप It's यूज all कर about सकते how you utilize them and you Yeah, know, just to add on that, I think Saud की जो PSL में भी bowling रही है for Right. Quetta, I think that also gives sort of like a credibility to him bowling in these yeah, tracks. in conditions में अब आप बिल- try जरूर कर सकते हो. You बिल्कुल have the रोहा जी, और आप हमने जो resource. बाउंस देखा है खास तौर पे Yeah. आज के सेशन में, मतलब एक गेंद शॉट की आज रबाडा ने मॉर्निंग सेशन में जिसको डक करते हुए एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर्स कॉल थी. बिल्कुल. तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके फास्ट बॉलर्स जब रिवर्स कर रहे होंगे, वो जो हम एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं, द पेस, द बाउंस ऑन दिस विकेट इज सो लो ऑलरेडी कि you won't be surprised them reversing the ball and targeting the stumps even from a hard length because it's going to stay so low, and that's where their X factor comes in. बिल्कुल. और And you साउथ know, की हाइट के साथ अगर स्लो बाउंस हो तो दैट्स अ ह्यूज एक्स it's फैक्टर gonna एज be वेल tricky for the batters. Let's see if South Africa have answers to that. लेकिन last cycle, Rehan, was quite disappointing for Pakistan. What can we learn from that cycle? हम क्योंकि खाली एक मैच या 2 मैच से beyond अगर assess करें, do Pakistan really have a chance this time around to end up somewhere in the table जहाँ पे we can gain some confidence and at least not be right at the bottom? What can Pakistan learn from their last cycle के mistakes? Don't fix something that's not broken, number one. What are we trying to fix? fix everything that is broken. So हुआ ये last test championship cycle के अंदर कि पाकिस्तान went away from home for the first time, whitewashed Sri Lanka in Sri Lanka. Then on those pitches जहाँ पे बॉल टर्न कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, आपको उधर से सीखना चाहिए था और आपको अपनी होम कंडीशंस वैसी करनी चाहिए थी. वैसे पाकिस्तान क्या करता है कि वी गो टू द सेफ ऑप्शन, और ये मिड 2000 से स्टार्ट हुआ है कि यू नो आवर बैटर्स यूज्ड टू स्कोर रन्स, मतलब 1600 स्कोर कर रहा है, कोई 1000 स्कोर कर रहा है, और बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है सर्फेसेस के अंदर. ठीक है, तो अब आपको टेस्ट चैम्पियनशिप का मकसद क्या है? रिजल्ट्स. और रिजल्ट्स कैसे आएंगे? जब आप बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस प्रोड्यूस करेंगे. और अगर आप ये सोचते हैं कि अक्सर अभी भी ये आर्ग्यूमेंट होती है कि यार इतनी स्पिन पिचेस क्यों बन रही हैं, आपके मौसम के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच नहीं बना सकते. ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलियन सॉइल इंपोर्ट भी की है, उस सॉइल को भी वेदर कंडीशंस वो वाली चाहिए ना. मतलब वो ये तो नहीं हो सकता कि दिस इज़ लाइक यू नो आप कोई, आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी लेफ्ट फील्ड एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा यूएसए के अंदर उन्होंने पाइथॉन्स लेके चले गए, और क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, वो इतने फैल गए कि नाउ दे हैव टू किल ऑल ऑफ देम. सो बेसिकली जब तक वो वेदर कंडीशंस और वो चीज़ें नहीं होंगी तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये साइंस ये नहीं है कि साइंस कहती है कि सॉइल बहुत अच्छा है, तो साइंस वेदर का भी तो साइंस है ना, मतलब उसको भी आप टेक ज़ाहिर इनटू है, ये अकाउंट. एक पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पिचेस कैसे काम करते हैं. यू कांट जस्ट लुक So एट you इट be एक Pakistan. वन डायमेंशनल तरीके से. I mean, be Pakistan, don't Be be Pakistan. Australia, don't be India, you are Pakistan. And until last cycle, even the captain was saying कि पाकिस्तान को शायद पता ही नहीं है कि हम किस टाइप की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं. Like, Yeah. and that was very, it was an interesting comment coming from a captain at that time कि even he has no clue. And this was of course before that हमने जब conditions बनाना pitches तैयार करना शुरू किए spin friendly, and हमने फिर साजिद को बुलाया, नुमान पे हमने rely किया. लेकिन now that we know somehow कि हम result, जिस तरह रेहान ने कहा कि result लाना ज़रूरी है, and we are, do you think ये series will be a start for Pakistan to begin moving away from draws and start thinking about getting results seriously? Absolutely, I think आपने 4 मैचेस में ऐसी विकेट्स बनाई जिसमें से 3 आप जीते, 1 आप हारे. वेस्ट इंडीज से आप मैच हारे, और वो इतना रैंक टर्नर था कि ऐसी विकेट पे फिर आप दूसरी ऑपोजिशन को भी पूरा चांस दे देते हैं. ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन मार्क्स कोच और कप्तान और टीम पे उठते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा रैंक टर्नर बना देते हैं फिर एनीबडीज गॉट अ गेम ऑन दैट. आपके कोई भी स्पिनर उस पर आगे विकेटें ले लेगा. तो आई थिंक वो एक ऐसा बैलेंस ढूंढना कि जहाँ पे विकेट डिटीरियोरेट कर रही हो, स्पिन भी कर रही हो, बट किसी हद तक मैनेजेबल हो, और फिर आपके बैटर्स उस पिचेस पे स्कोर भी कर सकें. दैट्स व्हाई आई बिलीव कि फर्स्ट इनिंग्स का पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्कोर है. और सेकेंडली आपको जब वो फॉर्मूला मिल गया, आपका होम मैचेस श्रीलंका के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने इस टेस्ट साइकिल में, यूड बैक योर टीम टू विन बोथ दो सीरीज. जिस तरह की आपने इंग्लैंड को जब दोनों मैचेस हराए और आपने फिर ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच जीता, तो आपको समझ आ गई कि किस तरह की कंडीशंस आपने खेलनी है. और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आपने अच्छा करना है, आपने होम कंडीशंस का पूरा फायदा उठाना है. जो भी टीम फाइनल में पहुंच रही है उन्होंने यही किया है. साउथ अफ्रीका को सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, छोटी टीमों के खिलाफ खेल के फाइनल में पहुंच गई है. दे शोड अप, दे टर्नड अप इन दैट फाइनल एंड शोड देयर पेडिग्री. पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए. वी ऑलवेज न्यू दिस वाज नॉट गोइंग टू बी एन इजी सीरीज फॉर साउथ अफ्रीका, बट अंटिल they have played this test match as well,
we can't really say, we can't really gauge ourselves either. So let's see, but hopeful signs there. And of course, जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, everyone was only talking about बाबर रिजवान. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी बाबर आजम से? बिकॉज वी नो फॉर वन थिंग कि क्राउड जो है वो आता है तो वो इंतज़ार में होते हैं कि बाबर आजम आएंगे, यू नो विल गेट टू वॉच हिम लाइव, मे बी स्कोरिंग इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट विल यू नो ट्रांसलेट इनटू हिम, स्पेशली अगर T20 में तो वो है नहीं, बट वनडे में शायद उनकी फॉर्म जो वापस आए. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी बाबर आजम से? कल जो हुआ उससे मुझे दो चीज़ें मेरे जहन में आई. नंबर वन के एक तो इट वाज ग्रेट टू सी टेस्ट मैच में इतना क्राउड. लास्ट टाइम मैंने ऐसा क्राउड 2005 इंग्लैंड सीरीज़ हुई थी, टेस्ट मैचेस में ऐसा क्राउड तब आया था. दूसरा ये कि जब शाहिद अफरीदी, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू नो अ बैटर यूज्ड टू गेट आउट एंड क्राउड शोर करने लग जाता था बिकॉज आउट होने पे नहीं कह रहे वो शाहिद अफरीदी आ रहा है. देन इन इंडिया बैक इन द 90s जब द्रविड को सचिन तेंदुलकर ने बोल्ड किया था, सॉरी द्रविड को शोएब अख्तर ने बोल्ड किया था, तो सारे क्राउड स्टार्ट चीयरिंग. शोएब अख्तर थॉट इट वाज फॉर हिमसेल्फ बट इट वाज फॉर सचिन कमिंग इन. वो अलग बात है कि शोएब अख्तर ने पहली बॉल पे सचिन को भी आउट कर दिया. बट दैट्स द काइंड ऑफ स्टार पावर दैट बाबर हैज, स्पेशली इन लाहौर बिकॉज ही इज़ फ्रॉम लाहौर. दैट्स नंबर वन. नंबर टू ये है कि दूसरी चीज़ मेरे जहन में है कि एवरी टाइम दिस कॉन्वर्सेशन कम्स अप कि बाबर जो हैं कितने ग्रेट प्लेयर हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज ग्रेटनेस. इंग्लैंड्स बेस्ट बैटर, फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड्स बेस्ट बैटर probably ever is Joe Root. Does he play T20 cricket? He doesn't. तो अभी बाबर को आई थिंक इस पे कॉन्सेंट्रेट करने दें. हम लोगों ने बाबर पे इतना प्रेशर डाल दिया है कि बाबर इधर भी स्कोर करेगा, वनडे भी करेगा, T20 भी करेगा. लेट हिम फोकस ऑन दिस टेस्ट सीरीज, गेट हिज रन्स. थोड़ी सी गेम से ब्रेक ली, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज हर टाइम वो प्रेशर. इवन इफ़ यू टॉक टू बाबर, मेरी बाबर से रिसेंटली जब भी बात हुई है तो मुझे ज़्यादा रिलैक्स लगे हैं. एंड आई थिंक कि जितना क्वालिटी वो प्लेयर है, जितना वो रिलैक्स रहेगा उतना उसके लिए अच्छा है. आई थिंक समटाइम्स यू नीड टू, कोई भी प्रोफेशन हो, आई थिंक समटाइम्स आपको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. व्हाई इज इट दैट ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट? बिकॉज ही लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज ही एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट. जब वो एंजॉयमेंट खत्म होगी ना, और हर प्रेशर और यू नो ये कैंप और वो कैंप और ये बात और वो बात, ये चीज़ों से जब वो निकलेगा, when he is old Babar, the young Babar, the version of Babar that enjoys playing cricket, I have no doubt he'll be a world beater again. बिल्कुल. and I think we hope कि हम सेकंड इनिंग्स में उनसे वो ग्लिम्स देखें, because ज़ाहिर playing at home is always a matter of honor for any player. ये एक बड़ी मज़ेदार फीलिंग है जो कि हमारे इनसे पहले जो जनरेशन थी उन्होंने तो खैर, जनरेशन तो नहीं खैर, एक स्ट्रेच ऑफ टाइम था जिसमें प्लेयर्स वर मिसिंग आउट ऑन प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड. तो आई थिंक लेट्स होप कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के फैंस जो हैं वो बाबर आजम की फॉर्म वापस लेकर आए इन द सेकंड इनिंग्स, एंड वी होप के रन्स ऑन द बोर्ड भी मज़ीद लगें. फ़िलहाल यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक, अ लिटिल मोर ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप एंड ऑल्सो ऑल ऑफ द एक्शन गोइंग ऑन in Colombo and in India for the ICC Women's World Cup. 50 ओवर वर्ल्ड कप चल रहा है जी. सबकी तैयारी होती है काफ़ी सालों की इस साइकिल के लिए. पाकिस्तान ने क्वालिफायर्स के थ्रू जो है एक बहुत कन्विंसिंग तरीके से अपनी जगह बनाई. एट होम पाकिस्तान वन द क्वालिफायर्स अनबीटन एंड नाउ दे विल बी इन कोलंबो. और ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी टाइम पहले से सबको पता थी कि कोलंबो में पाकिस्तान के सारे मैचेस खेले जाएंगे. एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न्ड, हसन, इट डिड look like, and in the 3 matches that we have seen, it has seemingly worked well for us in terms of bowling. अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी देखें, 76 for 7 थे ऑस्ट्रेलिया. The way Pakistan were in that match, in that first innings, it looked like Pakistan are going to restrict Australia brilliantly. लेकिन वहाँ से जी losing the match by 107 runs, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है. It's very hard to understand this. What happened to Pakistan in that previous match? I think पहले तो अच्छी चीज़ों की बात करते हैं कि आपने जिस तरह पेस अटैक का इस्तेमाल किया अप फ्रंट, फातिमा ने जिस तरह बॉलिंग की, और उसके बाद आपने जिस तरह स्पिन अटैक का इस्तेमाल किया, द लेंस यू बॉल. हम बात कर रहे थे नशरा संधू 2022 के वर्ल्ड कप के साइकिल के बाद सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाली हैं, उन्होंने भी 3 विकेट्स ली. और अब वो विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुकी हैं. शी इज ओवरटेकन सना मीर एज वेल, सो अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस शी इज गेटिंग. एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दैट शोड एज वेल इन दैट गेम. फिर सादिया ने भी अच्छी बॉलिंग की, रमीन ने भी अच्छी बॉलिंग की. मसला
पहले भी हमने देखा है, हम पिछले मैच में भी बात कर रहे थे इंडिया के खिलाफ भी, जब आप एक कमांडिंग पोजीशन में हैं जहां से आपने अपने ओपोनेंट को स्क्वीज कर देना एंड यू हैव टू बी रूथलेस बेसिकली, वहां पे जब मंजी आई और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कंडीशंस को जज किया एंड व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग वाज कि वो सारे स्पिनर्स को बैकफुट पर खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। वहां पे फिर आपको अडेप्ट करना पड़ता है एज ए टीम एज वेल कि यहाँ आप फील्ड उनके खिलाफ ऐसी खड़ी करें, या फुल क्रेडिट टू हर द वे शी प्लेड, या आप उनके खिलाफ बॉलिंग आगे करना शुरू करते हैं, फोर्स हर टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। 8वां आउट भी आपने 115 पे कर लिया था। इट वाज एन अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जो वो इस इनिंग्स को जहां तक ले गई कि आपने ऑलमोस्ट 90 टू 100 रन आखिरी 14 ओवर में कंसीड किए, बिल्कुल 14-15 ओवर्स में। तो आई थिंक आखिरी 10 ओवर्स में 81 रन्स किए ऑस्ट्रेलिया ने, व्हिच वाज दे वर स्कोरिंग एट 8.1 रन्स पर ओवर। मिडिल ओवर्स में आप अगर देखें उसी मैच में, ठीक है, दे वर ओनली एबल टू स्कोर फ्रॉम द 10th ओवर टिल द 40th ओवर 100 रन्स ओनली। सो रन रेट फ्रॉम 3 पर ओवर टू 8 पर ओवर एक पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी वो होगी कि आई थिंक मे बी दे वर नॉट ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ये लास्ट विकेट तक जो है इतना ज़बरदस्त स्टैंड भी लगेगा। कहाँ टोटल चला गया जी, 221 पे टोटल चला गया, विच एट वन पॉइंट लुक लाइक मे बी विद इन 120 जो है ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली आपको लग रहा था कि आप 30-40 ओवर में चेस कर लोगे स्कोर और आपको खत्म कर देना चाहिए। और जो आपने स्टैट्स की बात की, हमने पिछले शो में भी ये बात की थी इंडिया के खिलाफ मैच में, आपको डेथ ओवर्स में नया स्ट्रेटजी बनानी होगी। यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू फॉर द डेथ ओवर्स, बिकॉज थोड़ा सा वहां पे हम प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, टीम्स आर गेटिंग यूज्ड टू दैट। और ओवरऑल अगर हम बात करें ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले मैच है ना, आई स्टिल बिलीव, और तब भी मेरा यकीन था इनमें से एक मैच आप मारेंगे दूसरी टीम को, क्योंकि आप हर मैच में आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। क्लिक वहां पे आपकी डेथ बॉलिंग में मसला आ रहा है और बैटिंग में आपके टॉप ऑर्डर में इशू आ रहा है, और वो भी चीज आपकी फिक्स करने वाली, क्योंकि दोनों मैचेस में, बड़े मैचेस में आपने टॉस जीतकर दूसरों को इनवाइट किया, फिर आपको ऐसे स्कोर तक उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि आपके बैटर्स कंफर्टेबली फॉर्म में आ जाए। अभी बड़े मैचेस में आप प्रेशर लेके उतरे हो और उन्होंने खास तौर पे ऑपोजिशन ने जो स्विंग बॉलिंग की है उससे आप डिस्टर्ब हुए। बिल्कुल टू थिंग्स ऑन दिस ऑस्ट्रेलिया मैच। एक तो पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो बेटर देन आई डू, बट देयर आर ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव। सो बेसिकली जो आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात की, नंबर 1 तो ये कि आप ये देखें कि आपको एक्सपीरियंस क्या आता है कि प्रेशर में खेलने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एज की मैं बात नहीं कर रहा, 18 ईयर और 19 ईयर ओल्ड को भी सेम वो एनवायरनमेंट मिल सकती है। अब विमेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से जो वो लीग्स खेल रही हैं उनको पता है कि अगर इतने आउट हुए, ये सिचुएशन हुई, तो हमने अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कैसे परफॉर्म करना है। एंड वाइल शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हु हैव हैड दोज एक्सपीरियंसेस, वो आपको आके बताएंगे कि यू नो आपने XYZ करना है। अच्छा 7 आउट हुए हैं, 7 आउट के ऊपर हमने इस तरह खेलना है, जो सेट बैटर है उसको हमने कैसे स्ट्राइक देनी है और किस तरह करना है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लैक्स दैट इन वुमेन्स क्रिकेट एंड इन मेंस क्रिकेट, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। लाइक हम अंडर द कारपेट कर देते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक बेहतर करें, हम ये बेहतर करें, वो बेहतर करें। एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इज़ फार बिगर देन एक्सपोजर टू लिविंग इनसाइड अ बॉक्स। एंड आई थिंक हमें पुश करना चाहिए, जो हमारी टॉप वुमेन क्रिकेटर्स हैं, हमें पुश करना चाहिए कि दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, दे प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। हमारा थोड़ा डिफरेंट, हम तो थोड़े हम NOC सस्पेंड कर देते हैं, वी आर लाइक दैट्स गोना बी आवर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, मतलब हमारी सॉल्यूशन टू एवरीथिंग इज बैन। तो एंड द अदर थिंग इज कि बिकॉज ये मैच माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था, तो मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट हो, उनके 6 आउट हो, 7 आउट हो, चाहे होबार्ट का टेस्ट मैच हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ इन क्रिकेट खासकर, मतलब उनकी विमेंस क्रिकेट में भी जितने वो वर्ल्ड कप जीते हैं और मेंस क्रिकेट के जितने वो वर्ल्ड कप जीते हैं, आप मतलब किसी भी सिचुएशन से बहुत बड़ा गैप है, नो डाउट्स अबाउट दैट। बट अगेन पाकिस्तान की आपने जो आइडेंटिफाई किया बिल्कुल करेक्ट था कि एक तो डेथ बॉलिंग में बहुत बड़ा लैग है यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक मेंस क्रिकेट में भी हम शुरू अच्छा करते हैं विद द बॉल, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और डेथ ओवर्स में हम अल्लाह भरोसे हैं। हमारा आई थिंक गेम प्लान यही है कि देखी जाएगी। वो उसकी वजह है ना, अभी क्यों मैं हमारा डिस्कोर्स मैं आपको बताता हूँ। अभी आप डिस्कोर्स देखेंगे, anyone that you talk to, most people who create all these narratives played cricket in a generation जहाँ पे बॉल का चेक नहीं होता था। तो बॉल चेक नहीं हो रही, इसका मतलब है क्या हो रही है, बॉल रिवर्स थोड़ी ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यॉर्कर्स जो हैं वो बड़े सक्सेसफुल हैं, बिकॉज बैटर्स आर नॉट प्लेइंग द रैम्प, दे आर नॉट गेटिंग डीप इन देयर क्रीज, वो सिर्फ एक तरह से खेल रहे हैं।
आप क्या होता है कि हम अभी भी कोई नया बच्चा अगर आ रहा होगा 16-17 साल के आप बच्चे से मिलेंगे, वो उसको आप पेसर से मिलेंगे, चाहे वो वुमेंस क्रिकेट हो चाहे मेंस क्रिकेट हो, आप उनसे बात करेंगे और यूथ लेवल्स के ऊपर मैंने जिनसे बात किया वो कहेंगे अच्छा यॉर्कर करवाना है, अच्छा बाउंसर करवाना है, अच्छी हार्ड लेंथ करवानी है, ये डिस्कशन नहीं ये होती। कहीं कोई नहीं कहता। और डेथ ओवर्स में भी अच्छी हार्ड लेंथ मारना ज़्यादा मुश्किल है। एशिया कप का फाइनल जो पाकिस्तान इंडिया से खेला है उसमें फ़हीम ने एक पूरा ओवर स्लोअर बॉल्स का ऑफ स्टंप के बाहर करवा दिया। वाज दैट मोर इफेक्टिव और अटेम्प्टेड यॉर्कर्स और मोर इफेक्टिव? आपने पिच देखनी है, कंडीशन देखनी है, बैटर देखना है, फिर प्लान करना है। आंखें बंद की तो हमने बाउंसर मारना है। और दूसरी बात भी हमने पहले के 2 मैचेस में भी यही देखा कि हम स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में बहुत लैक कर रहे हैं। वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें, जब बिफोर द आई थिंक पहला जब मैच हुआ था, निदा डार वाज ऑन आवर शो, उनसे भी मैंने ये बात की थी, इज इट द लैक ऑफ प्लेइंग मोर क्वालिटी स्पिनर्स, जो हमारी प्लेयर्स को प्रैक्टिस नहीं है कि आपने क्वालिटी स्पिन को कैसे टैकल करना है, बिकॉज फिर आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है। उनका कहना ये था इसका कि इसके जवाब में कि नहीं, वी डू हैव वेरी गुड स्पिनर्स, जो कि हमें पता भी है, सादिया इकबाल, नशरा संधू, ये लोग अभी तूबा भी हैं, ये काफ़ी अच्छा एक स्पिन हमारा डिपार्टमेंट है। लेकिन डिस्पाइट हैविंग गुड स्पिनर्स, व्हाई आर आवर women batters not able to score big and close matches? आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर आप ख़ास तौर पे कोलंबो ये इस वर्ल्ड कप की बात करें ना, तो जो हमारा टॉप ऑर्डर ख़ास तौर पे सफ़र किया है, इवन मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने पेसेस भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, स्पेशली द बॉल मूविंग अवे बोथ वेज। इंडिया ने भी यही किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया, एंड दैट्स समथिंग बिकॉज वी सो अडेप्ट एट प्लेइंग स्पिन, क्योंकि हमारे भी आप कहेंगे जो स्पिन अटैक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, वी नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट ऑफ द गेम एज वेल। और सेकेंडली, अगर आप स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में आप खेलते हैं, आप अपने कंडीशंस में जितने मर्जी स्पिनर्स खेल लें, जो रेहान ने बात की है, जब आप वैरायटी ऑफ स्पिनर्स नहीं खेलते, जिनका बॉलिंग एंगल डिफरेंट होता है, जिनका पेस डिफरेंट होता है, बॉल की बाइट डिफरेंट होती है, आपका उस चीज़ का एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, तब तक वो चीज़ उस तरह ट्रांसलेट भी नहीं होती। आई मीन यू हैव टू गिव दैट रूम ऑफ sort of like improvement to the team as well। और जितनी ज़्यादा competitive cricket ये खेलेंगी, और ये एक young side है relatively, I think this is going to be good for them। और जिस तरह की performances in patches अभी आ रही हैं, I think they just need to find that consistent form। क्योंकि अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान एक मैच जीता था पिछले वर्ल्ड कप में, ठीक है, और बिल्कुल मे बी वीर पुटिंग टू मच ऑन देयर शोल्डर्स राइट नाउ, थिंकिंग ये तो सेमीफाइनल में मस्ट पहुंचनी चाहिए। उससे पिछले वर्ल्ड कप में आप बात करें, हम कोई मैच नहीं थे But जीते। again, the one thing that's different this Yeah. time around is that it has been established काफ़ी टाइम पहले से कि पाकिस्तान की कोई ट्रैवलिंग नहीं है, पाकिस्तान ने सारे मैचेस कोलंबो में खेल रहे हैं, और ये Yeah. बात काफ़ी टाइम से पता थी। Did the management have that in mind? या टाइम ही बहुत कम था टू प्रिपेयर? लड़कियों ने कितनी क्रिकेट खेली है बिफोर, लाइक साउथ अफ्रीका सीरीज थी, और Yes. उससे पहले डोमेस्टिक में कितनी ही आप तैयारी कर लेंगे कोलंबो में खेलने के लिए। अब 3 मैचेस हम हार गए हैं, अगला इंग्लैंड के अगेंस्ट है हमारा मैच। क्या बाय द 4th मैच कुछ एक स्पेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्रिएट कि हमारी बैटिंग की क्या डिमांड्स हैं? 3 मैचेस बाद हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल सबसे ये है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, आपको पता था कि कोलंबो के अंदर पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑल देयर मैचेस, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर यू, राइट? इट इज़। मुझे कोई ये समझा दे कि जब तक आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं ना करेंगे फाइनेंशियली, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते। मुझे पता है अभी वुमेंस के कॉन्ट्रैक्ट बहुत बेहतर हुए हैं, पर वो वुमेंस के कॉन्ट्रैक्ट बेहतर करने से एकदम सब कुछ चेंज नहीं होगा। आपको अगर पता था कोलंबो में है, तो आप एसएलसी से बात कर सकते थे कि हमें आप 5 से 6 प्रैक्टिस मैचेस वहाँ पर दे दें। जब आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, उस टाइम के ऊपर आप 1-2 मैचेस अपने वहाँ पर जाकर खेलाते। मतलब ये चीज़ें आप डिस्कस करते, थोड़ा इन्वेस्ट करते, थोड़े पैसे लगाते वुमेंस क्रिकेट के ऊपर, फिर आप उनको अकाउंटेबल ठहराते कि भाई आप तो कोलंबो में 3-4 मैचेस आपने पहले खेले हैं, अब आपसे क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा। एक प्रैक्टिस मैच के अंदर वर्ल्ड कप से पहले जो 2-3 प्रैक्टिस मैच हैं, और एक्चुअली में जब आपकी टीम वहाँ पर जाकर खेल रही है, उसमें बहुत फ़र्क है। वो एकदम नहीं हो सकता। और जिन टीम्स के खिलाफ आप खेल रहे हैं ना, जिन टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट में खेला है, उनके रिसोर्सेज और आपके रिसोर्सेज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एंड द एक्सपोजर थिंग ऑल्सो, लाइक वुमेन्स क्रिकेट का एक्सपोजर, मेंस क्रिकेट में भी पाकिस्तान का एक्सपोजर का इतना डिफरेंस है कि आप ये देखें कि रोहा, यू होस्ट टीवी शोज, यू होस्ट पॉडकास्ट, आपको जब तक डिफरेंट किस्म के गेस्ट नहीं ना मिलेंगे कि एक गेस्ट है उसने एक बात की, एक ने मेरी तरह का गेस्ट आया उसने लेफ्ट फील्ड बोंगी बात कर ली, तो कहने का मकसद है यू लर्न टू डील विद देम ओवर टाइम।
अगर आपको पहली दफ़ा कोई ऐसा बंदा मिले जो कि बिल्कुल ही लेफ्ट फील्ड बात कर दे शो के ऊपर, तो यू वुड ऑल्सो टेक टाइम टू एडजस्ट। तो हमारी हमारी अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट प्रोवाइडेड दोज पाथवेज टू आवर वुमेन क्रिकेटर्स। ये कहना कि तनख्वाहें ज़्यादा कर दी, आई do डोंट agree with बाय that. दैट। ये थोड़ा सा Yeah. there's a big gap and of course जहाँ पे बड़ी टीम्स आ जाती हैं आप ज़रूर एक क्वेश्चन करते हो कि ठीक है there is a gap, but पहला मैच against बांग्लादेश not being able to bat the 50 overs, 129 is what Pakistan managed in under 40 overs actually. वो थोड़ा आपको लगता है कि क्योंकि वर्ल्ड कप्स में ये मैचेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके थोड़े से रिलेटिवली वीक तो नहीं कहेंगे बट आपके लेवल की टीम्स के साथ हो जो आपके लिए इजी पॉइंट्स होते हैं ऑन द टेबल, नॉट बीइंग एबल टू बीट बांग्लादेश and then of course India, Australia are tough opponents, England again tough opponents, but this match will bite Pakistan, do you think? आई थिंक ऐसा है भी एब्सोल्युटली। और जहाँ पे होता यही है, अगर आप टूर्नामेंट में जल्दी खास तौर पे आपका टॉप ऑर्डर एक सेटल्ड परफॉर्मेंस दे देना तो वो रिवर्बरेट करती है पूरे टूर्नामेंट में, आपकी फॉर्म भी और वो कॉन्फिडेंस भी। और वहीं से जो थीम सेट हुई हुई है अनफॉर्चुनेटली अभी तक वही कंटिन्यू हो रही है टॉप ऑर्डर की। तो जहाँ पे आपको बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत क्लोज मैच जीतना चाहिए था या टक्कर देनी चाहिए थी बड़ी अच्छी, वहां से आपने टर्न अराउंड जरूर किया। आई मीन ये मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह उन्होंने पैचेस में बड़ी देर में बल्कि मैच में इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्मेंस की और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, तो इम्प्रूवमेंट्स तो नजर आ रही हैं। लेकिन वही बात है कि इस तरह आने का कि आप ईयर्स ऑफ कम्पिटिटिव क्रिकेट को 9 मैचेस की सिमिलर कंडीशन से नहीं रिप्लेस कर सकते। यू विल ऑलवेज हैव दैट, यू विल सी दैट गैप और वो आपको नजर आता है। हैविंग सेड दैट, आपको फिर स्किल और टैलेंट भी नजर आता है कि अगर इन्हीं लोगों को वो ज़्यादा लंबे मौके फ्राहम किए जाएं, और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि आपका कभी भी जब वर्ल्ड इवेंट आने लगा है ना, आपको अपनी टीम को 2-3 हफ्ते पहले भेज देना चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट दैट। कब शुरू होगी ये इन्वेस्टमेंट और अदर व्हेन विल वी स्टार्ट टेकिंग वुमेन्स क्रिकेट सीरियसली दैट गोज बियॉन्ड जस्ट योर एशियन गेम्स एंड योर ये आपके जो वर्ल्ड कप्स हैं, T20 वर्ल्ड कप्स हैं, आपके मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हैं? आई थिंक कुछ चीजें तो बेहतर हुई हैं, जिस तरह Because आपने there was a league announced. यस आपने पाथवे लीग अंडर 19 की भी अनाउंस की है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेहतर किए हैं, आपने उनका शेड्यूल भी अनाउंस किया। थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, और अभी अभी अंडर 19 का टूर्नामेंट रैप अप हुआ है, देयर वर सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस, काफ़ी एक्साइटिंग यंग टैलेंट ज़रूर निकला है, लेकिन क्या हमारी प्रॉब्लम टैलेंट है या Never. क्या हमारी टैलेंट Never. हंटिंग हमारी प्रॉब्लम है या टैलेंट डेवलपमेंट एंड नर्चरिंग हमारी it's प्रॉब्लम है? consistently giving them an opportunity and the resources to nurture themselves. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, अभी टेस्ट क्रिकेट हो रही है ना, आपको पता है कायदे आजम ट्रॉफी में ड्यूक का बॉल यूज हो रहा है। खेलनी हमने होम पे टेस्ट क्रिकेट कोकोबरा गेंद से है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की तैयारी हम ड्यूक बॉल से कर रहे हैं। ये वही है कि आप मतलब फाउंटेन पेन से आपने पेपर देना है और वैसे आप जो है वो क्लिपर यूज कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि इंक इधर उधर जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ग्रिप नहीं हो रहा गेंद। छोटी छोटी चीजें हैं विच आर लाइक आप कहते हो यार ये तो होनी नहीं चाहिए। ये तो इसी तरह नॉट मेक सेंस। जब मैं मेरे कहने का मतलब है कि आई एम सॉरी जस्ट टू फिनिश ऑफ दैट पॉइंट कि जब आप मेंस क्रिकेट में इतने ग्लेरिंग चीजें आपके सामने होती है तो वुमेन्स क्रिकेट को जब हम देखते हैं कि चलो यार अभी ये हो रहा है, आप इसको टाइम दो, ये डेवलप होगी, टैलेंट की कोई कमी नहीं। टैलेंट की कोई कमी मैं ये टैलेंट, एक तो मुझे टैलेंट ये समझा दे कोई कि टैलेंट क्या है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आई वाज टॉकिंग टू एन एल्डर अंकल, आई वोंट टेक हिज नेम। तो उन्होंने कहा जी लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी आती। तो मैंने उनसे कहा कि आपने गाड़ी किस उम्र में चलाना शुरू की? तो ही सेड 13 ईयर्स की एज के अंदर। तो मैंने कहा कि जो लड़की गाड़ी चला रही है वो उसने किस एज में स्टार्ट की? तो उसने कहा 21। तो मैंने कहा वो कितनी साल की? उसने कहा 24। तो मैंने कहा जब आप 24 के थे ना, आपके पास 11 साल का एक्सपीरियंस था, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है। हाउ कैन यू कंपेयर बोथ दोज थिंग्स? ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ही फजूल बात है कि भाई ये सिमिलरली अगर एक बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं ना, पहली दफ़ा वो गिरेगा, दूसरी दफ़ा गिरेगा, जितनी दफ़ा वो साइकिल चलाएगा ही विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। द मोर यू प्ले अ स्पोर्ट यू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एट इट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वुमेन्स की क्रिकेट की बात करते हैं ना, हर 3-4 साल बाद उठ के आ जाता है कि जी हमने ये वाली लीग करवा दी, हमने ये लीग करवा दी, हमने स्कूल लेवल के ऊपर करवा दिए, टैलेंट हंट्स करवा दिए। वो टैलेंट हंट क्या करवा, टैलेंट हंट करवाया, एक टैलेंटेड क्रिकेटर निकली आपके पास बेचारी, उसके बाद उसने आपने उसको क्या पाथवे प्रोवाइड किया? उसके बाद क्या आता है कि जी अच्छा हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। भाई आपने एहसान नहीं किया तनख्वाहें बढ़ाकर, मतलब दे आर योर टैलेंट पूल। आपका क्रिकेट बोर्ड इट डज मेक मनी ऑन इट्स ओन, इट्स अ टैक्स पेइंग इदारा जो कि पैसे कमा रहा है, तो आपने इधर पैसे नहीं लगाने तो कहाँ लगाने हैं पैसे?
डिसेंट्रलाइज आप कुछ होने नहीं देते, डिसेंट्रलाइज आप होने नहीं देते, सारा कंट्रोल आपने अपने पास रखना है। डिसेंट्रलाइज नहीं होगा तो मुझे बताएं कि ग्रास रूट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। एक बंदा अपने घर में बैठ के सोच रहा है, या लोग सोच रहे हैं लाहौर में बैठ के कि जी मैं जो हूँ वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंप्रूव कर दूंगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? गिलगित बल्तिस्तान के बंदे को पता होगा ना, या बंदी को पता होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एवरीवन तो डिसेंट्रलाइज जब तक हम नहीं करेंगे, हम यही आर्गुमेंट्स करेंगे, टैलेंट है, टैलेंट नहीं है। टैलेंट जितना मर्जी हो, अगर फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल के एग्जांपल दे, लियोनेल मेसी बार्सिलोना नहीं जाता बिल्कुल। तो लियोनेल मेसी नहीं होता, चलिए, पाथ में अभी था। ये अंडर 19 टूर्नामेंट खत्म हुआ है, वी हैव गॉट अ फ्यू एक्साइटिंग प्लेयर्स। अब इनके साथ क्या नेक्स्ट स्टेप इन प्लेयर्स के लिए क्या होना चाहिए दैट विल गिव देम अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म करियर पाथ? कि अच्छा अब आपने अभी अंडर 19 में हो, इसके बाद फिर आपके मतलब विमेंस टीम का ग्रास रूट स्ट्रक्चर अभी राइट नाउ हाउ इज इट लुकिंग? आई मीन दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं टैलेंट को, लेकिन वो ग्रूमिंग वाली स्टेज खत्म हो जाती है। तो ग्रूमिंग अगर आपने करनी है, आप सबसे पहले तो सक्सेसफुल मॉडल्स को उठाएं, आप इंडिया के मॉडल को उठाएं, क्योंकि 10-12 साल पहले जो इनकी विमेंस क्रिकेट टीम का हाल था जब उधर वर्ल्ड कप पहले हुआ था, एंड द वे दे परफॉर्म्ड वाज नथिंग कंपेयर टू जिस तरह वो इस वर्ल्ड कप में आए हैं और जो उनकी पेडिग्री इस वर्ल्ड कप में शो होती है। क्यों? उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया और कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया। तो अगर आपने अंडर 19 की क्रिकेटर्स उठाए हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस आपका मेंस का मॉडल है कि आपकी 3 डे क्रिकेट भी हो रही है, 1 डे क्रिकेट भी हो रही है, T20 क्रिकेट भी हो रही है, आपको कंटिन्यूस क्रिकेट देना पड़ेगी। सेकेंडली, जो रेहान डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से वो टैलेंट आइडेंटिफाई हुई हैं तो उन्हें एक घर मिल जाता है जहाँ पे जाके वो कंसिस्टेंटली ट्रेन कर सकती हैं। शी एक्चुअली हैज़ अ रिसोर्स जहाँ पे वो अपनी फिटनेस पे काम कर सकती हैं, अपनी स्किल्स पे काम कर सकती हैं। हमें ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे ऑल ईयर राउंड इस टैलेंट को, वरना होगा क्या, ये टैलेंट कभी भी फ्रूएशन तक जाएगा ही नहीं। इसकी मैं मिसाल आपको उस तरह भी दूंगा, माइकल जॉर्डन द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर एवर वाज नॉट पिक्ड इन हिज कॉलेज टीम, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर उस समर जब उन्हें निकाला गया किस तरह तैयारी की। मोहम्मद अली को जब इनिशियली वे किया गया और उनकी बॉडी डायमेंशंस को वे किया गया, लोगों ने कहा ये नेचुरली नहीं है, लेकिन उस बंदे की मेंटालिटी का इतना लेवल था कि वो अपने ओपोनेंट को, सनी लिस्टन के खिलाफ जब उनका बॉक्सिंग मैच था, उन्होंने उनको अल्फाज में ही पहले ही हरा दिया था मैच लड़ने से पहले, और फिर दुनिया कहती थी इससे बड़ा टैलेंटेड बॉक्सर है ही नहीं। टैलेंट जब ग्रूम हो जाता है ना तो वो पीक पे तब आता है जब वो ग्रूमिंग की आप उसको मौके देते हो, जब रेपिटेशंस के मौके देते हो, तब वो टैलेंट पीक परफॉर्मेंस पे आता है। हो सकता है कोई इधर हो टैलेंट पे, कोई इधर हो, लेकिन जब आप ग्रोथ उनकी करवाते हैं तब फिर सारे यहाँ खड़े होते हैं, वहीं पे पाकिस्तान लैग करता है। Can I say one last thing? It's maybe very controversial, ठीक है? We have to accept realities. Reality ये है कि socially पाकिस्तान में एक लड़का क्रिकेटर है ना, उसके लिए बहुत आसान है वो घर छोड़ के चला जाए और कहे जी मैंने तो बड़ी मेहनत की है। Similarly, for a girl, it will be far more difficult. Those are realities of our society. Number one, accept that. And you can't ignore them while you're And number two, please accept the fact कि जब आपके legendary लोग बैठकर ये बात करेंगे women should not be playing cricket, ये गलत बात है और it should be called out, ठीक है? ये पहले भी call out हुई है और ये बार बार call out होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। अगर आपने women's cricket improve करनी है अपने मुल्क के अंदर, तो ऐसी जितने भी लोग जो ये बातें कर रहे हैं उनको आपको call out करना पड़ेगा। बिकॉज हो क्या रहा है कि वही लोग डिसीजन ले रहे हैं। दिस इज द सेम एज वो आप मुझसे बात करवा रही हैं व्हेन इट फील्स लाइक मैंसप्लेनिंग ऑन वुमेन्स क्रिकेट, बट आई विल से वन थिंग कि आई वाज रीडिंग अ रिसर्च ऑन मेडिकल साइंस, सो एंड बेसिकली ऑल द टेस्ट्स वर डन ऑन मेन एंड द सेम मेडिकेशन वाज बीइंग गिवन टू वुमेन, एंड वुमेन की बॉडी के डिफरेंट है टू अ मैन्स बॉडी, और वो सेम चीज़ें उनको दे रहे थे और वो बीमार होनी थी बेचारी। So basically let women handle women's cricket, ठीक है? And please ये जो narratives create हो रहे हैं ना कि इनको तो ये नहीं करना चाहिए, इनमें power नहीं है, इनमें ये नहीं है, वो नहीं है। आप इसके मैं example देता हूँ, women's football आप follow करें, the skill level in women's football is higher than in men's football because men's football is बस भागो भागो। टेनिस में सबसे बड़े नाम ले लें, आप देख लें कि सरीना विलियम्स हैं, कितने ग्रैंड स्लैम्स वो जीती हैं, कितना ज़बरदस्त उनका करियर है। एंड आई थिंक ये डिबेट, आई थिंक टेनिस में बहुत इट actually creates a proper level playing field. तो a lot that we can learn from other sports as well. अगर क्रिकेटिंग में आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि हसन ने भी कहा कि आप वो वाले मॉडल फॉलो कर लें जो आपके नेबरहुड में है, जो आपकी और कंट्रीज़ में है, जहाँ पे सक्सेसफुली विमेंस क्रिकेट इतने सालों से ना सिर्फ इस्टेब्लिश हुई हुई है बट वो फ्लरिश कर रही है और वो सस्टेन हुई हुई है। सो आई थिंक अ लॉट फॉर अस टू थिंक अबाउट आफ्टर
this show. Hassan Azam, Rehan Ulaq, आप दोनों का बहुत शुक्रिया for your Pleasure. time and analysis. And before we wrap up, in case you have missed out on any PDV Sports engagements, आप हमें social media पे follow कर सकते हैं जी. YouTube हमारा subscribe करें and also make sure you follow us on Facebook and on Instagram and on Twitter or X, whatever you want to call it. And वहाँ पे भी BTS content भी लग रहा है और ये show की recordings भी आप देख सकेंगे. And उसके साथ you will be able to have a word with us as well. तो आपके comments भी हम अपने show में शामिल करेंगे. Thank you so much for watching Sports Tonight. This is Rohan Nadeem. We'll catch you in the next one. अपना बहुत ख्याल रखें and enjoy the Women's World Cup action.